बच्चों, वेलकम टू माय चैनल CBSE मैथमेटिक्स ATM. In previous class you have learned about introduction of area related to circle. We will continue now exercise 12.1. Let's see question number 1. Radii of two circles are 19 centimeter and 9 centimeter respectively. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of circumferences of two circles. Let's see here. In this question you have given radii of two circles. Okay. Exercise 12.1, question number 1. You have given radii of two circles. We can simply draw different kinds of circles, and the radius of first circle is given that 19 centimeter, radius of second circle is given 9 centimeter. You have to find radius of another circle, let it as a known radius r, and these radius as r1 and r2. So according to क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन कह रहा है रेडियस ऑफ सर्किल, उस सर्किल की रेडियस बताइए विच है सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्किल, यानी उस सर्किल की सर्कमफेरेंस जो गिवन सर्किल हैं इनकी सर्कमफेरेंस के सम से इक्वल हो. तो हम क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सर्कमफेरेंस. अब आप लोगों को सर्कमफेरेंस और एरिया के फार्मूले रिलेटेड टू एरिया आपको मालूम होंगे, और अगर नहीं मालूम है तो आप देख सकते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल होता है 2πr और एरिया होता है πr². सो लेट्स कंटिन्यू हियर. क्या गिवन था? सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ दीज टू सर्किल. तो सम ऑफ सर्कमफेरेंस का मतलब C1 C2 इक्वल C1 and C2 for first circle and second circle, and C for another circle. So let's 2πr 1 plus 2πr2 equal 2πr. Hence you can say 2π is common, r1 plus r2 equal 2πr. 2πr cancel. So r1 plus r2 equal r. r1 is given 19, r2 is given 9. So r will equal 9 9 18 or 1 1 2 28 centimeter. That is the answer of the question. Let's see second question. In the questions number 2, you have given radii of two circles are 8 and 6 respectively. Similarly, you can write here r1 is given 8 centimeter, r2 is given 6 centimeter. There is similar problem. You can draw the same figure. Okay, so first radius is 8, second radius is 6, and now radius of third circle you have to find which having area equal to the sum of area of two circle. आपको गिवन क्या है? फिर से आप पढ़िए. इसका जो सर्किल बन रहा है न्यू सर्किल, उसका एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्किल. तो इसमें हमें क्या करना है? मान लें कि हमारा फर्स्ट सर्किल का एरिया A1 है, सेकेंड सर्किल का A2 है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन you have given A1 plus A2 equal to A. Okay, A1 plus A2 equal to A, and hence you can write the formula pi r1 square pi r2 square equal pi r square. Similarly, you can take common pi here. It will be r1 square plus r2 square and pi r square. Pi and pi will cancel.
again you can write the value of R1 and R2, that is 8 and 6 R square. So it will be 8 8 is 64 and 6 6 is 36, will be 100. So you can say R square equal to 100 and hence R will equal to 10 centimeter, radius of another circle. Okay, these two questions are most important. Why it is most important? Because it will come in MCQ type questions where you have given 4 options in which one is correct. Okay, तो these type question जो हैं ये आपके न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे हैं, तो इनको आप सीखें अच्छे से. नाउ सी योर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज इन डेपिक्ट फिगर. ये एक फिगर बना हुआ है. डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड. देखिए इसमें ये फिगर है आर्चरी टारगेट. हमने कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ से नहीं पढ़ा, आप देखें. एन आर्चरी टारगेट है आज मार्क्ड विद इट 5 स्कोरिंग रीजन. you have here figure is here region from the center outwards as gold. इसमें जो सेंटर का रीजन है आउटवर्ड से, इसमें कैसे कैसे हैं. पहला रीजन है गोल्ड, फिर रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट. डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21. ये आपका आर्चरी टारगेट है. इसमें ये 5 रीजन्स हैं जहाँ पर कोई आर्चरी टारगेट यहाँ पर सेट करता है. अगर गोल्ड रीजन में आएगा तो कोई ना कोई उसको पॉइंट मिलेगा, हाईएस्ट पॉइंट मिलता है. फिर रेड रीजन में उससे कम, ब्लू में और कम, ब्लैक में और कम, वाइट में और कम. ठीक है, तो ये सिंपली शोर होता है. तो ये 5 एक तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्किल का कॉन्सेप्ट है. तो यहाँ से कॉन्सेंट्रिक सर्किल जैसे ये 5 सर्किल्स बने, यानी सबका सेंटर सेम है, रेडियस डिफर होगी. जैसे पहले गोल्ड रीजन है, गोल्ड रीजन में 21 सेंटीमीटर डायमीटर गिवन है, इट्स अ डायमीटर. एंड द रेडियस ईच बैंड इज विड्थ ईच बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर. तो जो इनकी विड्थ है, इनकी सबकी स्ट्रिप लेंथ है कह सकते हैं, ये है 10.5 फर्दर. तो हमें बताना है हर एक टारगेट रीजन का एरिया. तो देखिए कैसे करते हैं. ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है. ये डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस में ज़्यादा पूछा जाता है, मल्टीपल चॉइस के लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं रह जाता फिर ये. तो इसको हम डिस्कस करेंगे. देखिए हमने बनाया एक सबसे पहले एक सर्किल जिसको हमने गोल्ड रीजन दिया, और ये रेडियस में 21 डायमीटर है, तो रेडियस 21 की हाफ हो जाएगी. तो मान लीजिए ये पहला सर्किल है, तो पहला सर्किल की रेडियस R1 हो जाएगी 21/2, ये हो गई 10.5 सेंटीमीटर. जनरली हम पॉइंटेड वैल्यू नहीं रखेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में हम रखना चाहते हैं. रीज़न है इसकी जो स्ट्रिप लेंथ है, स्ट्रिप की विड्थ है, ये भी 10.5 है, तो ये पॉइंटेड है ऑलरेडी. तो आप देख सकते हो ये ईच बैंड जो है वो 10.5 सारी की सारी रहेंगी. अब देखिए जब हम रेडियस बाकी की हम बात करेंगे तो ये जो 10 पॉइंट विड्थ है यही प्लस होती जाएगी. तो ये R1 तो आपकी 10.5 हो गई. अब अगर R2 की बात करें तो यहाँ से ये 10.5 और इंक्रीज़ हुआ, 10.5 पहले से था, तो ओवरऑल ऐड कर दीजिए इसमें, तो 21 सेंटीमीटर हो जाएगा. इसी तरह से R3 की अगर बात करें तो फिर 10.5 और ऐड हो जाएगा, तो इसमें 10.5 ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर. सिमिलरली 10.5 अगेन R4 हो जाएगा 42 सेंटीमीटर. एंड R5 हो जाएगा यहाँ से 10.5 और ऐड करने पर 52.5 सेंटीमीटर. ओके, नाउ सी फर्स्ट एरिया ऑफ गोल्ड रीजन. राइट, गोल्ड रीजन ओनली सर्किल बना हुआ है, तो गोल्ड रीजन का एरिया क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि रेडियस उसको R1 हमने कंसीडर किया है, तो R1 ही रेडियस इसमें हम रिप्लेस करेंगे. R1 की वैल्यू आपकी है 10.5. यहाँ पर हम इसकी पाई की वैल्यू यूज कर सकते हैं 22/7. जनरली क्वेश्चन में दे देता है, नहीं देता है तो आप स्टार्टिंग में आप एक्सरसाइज के देख सकते हैं, इसमें लिखा है पाई की वैल्यू 22/7 यूज करिए, तो 22/7 आप यूज कर सकते हैं. और
इन केस अगर कोई भी वैल्यू 7 से डिविजिबल नहीं है तो आप उस वैल्यू को फिर रिप्लेस न करके 3.14 रख लें, और या फिर पाई के फॉर्म में ही आप आंसर दे सकते हैं। तो R1 की वैल्यू हमने रखी 10.5, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर का मीन्स है 2 टाइम मल्टीप्लाई, इसका 22 इंटू 10.5 इंटू 10.5 बाई 7 कर लीजिए। 7 से एक ये कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, करेक्ट। तो 1.5, 10.5 और 22, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये देख सकते हो 15 2 जा 30, 3 कैरी, 15 2 जा 30 और 3 18, 30 और 3 33, ठीक है। 33 इंटू 10.5, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर मिल जाएगा। तो इतने सेंटीमीटर आप स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में अब जैसे एक स्ट्रिप रीजन हम कोई बताते हैं, जैसे मान लीजिए हमें ब्लू का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ब्लू, हम सारे रीजन के आंसर नहीं निकाल रहे हैं, ये आपको खुद करना है, डू योर सेल्फ, ठीक है। DYS हम लिख देंगे, क्यों करना है अभी आपको क्लियर हो जाएगा। एरिया ब्लू, हम एक स्ट्रिप निकालते हैं, इस ब्लू जो स्ट्रिप थी हमारी 3rd स्ट्रिप थी, तो फर्स्ट ये गोल्ड हो गई, सेकेंड आपकी ये रेड हो गई और तीसरी ये ब्लू वाली रीजन, तो इसकी हम एरिया निकाल रहे हैं इस बैंड की। तो इसको अगर आप फिगर में कम्प्लीटली देखें तो ये जो रीजन है इंक्लूडिंग द 3rd सर्किल एंड 2nd सर्किल, तो 2nd सर्किल तक ये रीजन बिल्कुल भी नहीं आता है, ये केवल 3rd सर्किल में इतने पार्ट में आ रहा है। तो अगर हम इस 3rd सर्किल के ओवरऑल एरिया में से इस 2nd सर्किल का एरिया माइनस कर दें तो सिंपली इस कवर्ड रीजन का एरिया आ जाएगा, या कह सकते हैं एरिया ब्लू रीजन आ जाएगा। तो इसका जब ब्लू रीजन का आप लोग एरिया निकालेंगे तो सिंपली क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा पाई R, बड़ा कौन सा एरिया है 3 वाला, तो R3 स्क्वायर में से पाई R2 स्क्वायर को माइनस करना है, ये कंटिन्यूअस रखना है, ठीक है। 3 में ये अगर 3rd है तो ये 2nd माइनस होगा, अगर ये 2 है तो ये 1 होगा, ये 4 है तो ये 3 होगा, ये 5 है तो ये 4 होगा। क्यों होगा, अब आप इसमें ज़रा देखिए, ये आपका जैसे एरिया निकालना है रेड रीजन का, तो आप देख सकते हो कि ये रीजन में 2nd रेडियस आपकी R2 है, R2 वाले रेडियस के सर्किल में से इन सर्किल, ये जो R1 वाला सर्किल है, अगर ये माइनस हो जाएगा तो आपका ये रीजन आ जाएगा। इसी तरह से हमने 3rd का बता दिया। 4th की बात अगर करें तो 4th एरिया में यहाँ तक की रेडियस आप कंसीडर करोगे, अगर इस पूरे सर्किल के एरिया में से ये 3rd तक का सर्किल एरिया माइनस हो जाए, इतना माइनस हो जाए, तो ये वाला रीजन का एरिया आ जाएगा। तो इसी तरह से आप बाकी के फार्मूले बना सकते हैं। तो हमारा ये बन गया पाई R3 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर, तो पाई इससे कॉमन कर लेंगे, पाई की वैल्यू चाहें तो 22/7 लिख लेंगे, और फिर R3 की वैल्यू देखिए 31.5 और ये है स्क्वायर। इसी तरह से ये R2 की वैल्यू है 21, तो इसमें भी स्क्वायर कर दीजिए, और ब्रैकेट था ब्रैकेट लगा दीजिए। अब बच्चों यहाँ पर क्या कर सकते हो आप कर सकते हो इनकी स्क्वायर्स ओपन करके इनको सब्ट्रैक्ट, बट आप इसको अगर यूजिंग आइडेंटिटी सॉल्व करोगे, यानी a + b a - b, क्यों, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मेशन है यहाँ पर, तो अगर इसको a - b a + b के फॉर्म में सॉल्व करोगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। 7 से एक वैल्यू कट जाएगी, दिखाते हैं आपको, 22/7 तो ये था ही, इसमें ये जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो ये हमेशा 10.5, यानी ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको सब्ट्रैक्शन वाली वैल्यू यही मिलेगी, और इनटू एक में प्लस करेंगे, एक ब्रैकेट माइनस हो गया तो -10.5, एक ब्रैकेट प्लस हो गया तो प्लस करने पर 31 और 21, इसको जरा ऐड कर, 0.5 तो 0.5 रहेगा, तो 11235 52.5 ही हो गया। आपसे ये 7 से कट जाएगा, चाहे इसको कट कर लो चाहे इसको कट कर लो। मान लीजिए इसी को कट किया तो ये अभी हमने कट किया था 1.5 आया था, और ये इसका मल्टीप्लाई 33 से मल्टीप्लाई होगा और आपका ये आंसर दे जाएगा। तो इसी तरह से बाकी के पार्ट के आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप कर लेंगे, बाकी के पार्ट आप सेल्फ करेंगे। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव बेस में, और ये मल्टीपल चॉइस में कम पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, फिर भी आप समझ सकते हैं। देखिए, व्हील ऑफ अ कार काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन माना जाता है अगर डिस्क्रिप्टिव आता,
बट कोर्स आपका फ़िलहाल तो फर्स्ट टर्म कोर्स डिस्क्रिप्टिव ना हो करके आपको पता है कि ये अब हो गया है मल्टीपल चॉइस। ठीक है, तो हमारा ज़्यादा स्ट्रेटजी जो रहेगी, फोकस जो रहेगा, हम क्वेश्चन तो सारे सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट समझते जाएंगे और उसके साथ साथ हम अपना क्राइटेरिया भी फुलफ़िल करते जाएंगे। यानी हमारा नंबर जो जिसके थ्रू आना है उन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स रीड। द व्हील ऑफ अ कार आर द डायमीटर ऑफ 80 सेंटीमीटर। बच्चों, जब कभी भी आप मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सर्किल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ट्रायंगल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो जनरली आपको एक फिगर की नीड होगी। यानी विदाउट ड्राइंग अ फिगर यू कांट सॉल्व। इफ यू हैव टू मच प्रैक्टिस देन यू कैन सॉल्व विदाउट फिगर, बट जनरली it will be easy to solve the question by drawing the figure. Okay, so you can draw. So let's see. Wheel of a car are of diameter 80 centimeter each. Let's see. क्वेश्चन नंबर 4, अगर हम इसको पढ़ते जाते हैं और फिगर को हम ड्रा करते जाते हैं, हमारे पास क्वेश्चन स्क्रीन पर रहेगा और इसको हम ड्रा भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे ड्रा करेंगे। एक कार का व्हील है, तो फिलहाल एक हम व्हील कैसा होता है, सर्किल के शेप का, तो एक हम सर्किल बनाते हैं। एक सर्किल बनाते हैं। ये मान लीजिए कि व्हील है, व्हील ऑफ अ कार है। अब इसकी जो डायमीटर है वो 80 सेंटीमीटर है। डायमीटर इज़ 80 सेंटीमीटर, तो रेडियस इसकी सिंपली 40 आ जाएगी, हाफ करके। आप ऐसी फिगर में ही आप लिख सकते हैं। तो ये हो गई 40 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है हाउ मैनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट। इसका जो हर एक व्हील है, हाउ मैनी कंप्लीट रिवोल्यूशन, वर्ड ध्यान रखिए, इसमें एक वर्ड आया रिवोल्यूशन। यानी एक सर्किल जब रिवोल्यूशन करता है, रिवोल्यूशन का मतलब होता है कंप्लीट सराउंड, इसका सराउंड होता है, यानी घूमता है कम्प्लीटली। यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट करें और वापस इसी स्टेज पे आ जाएं, तो वो कहलाता है एक रिवोल्यूशन। और आपको पता होना चाहिए कि जब एक रिवोल्यूशन होता है तो ये एक सरकमफेरेंस के इक्वल होता है। एक रिवोल्यूशन जो होता है वो सर्किल का सरकमफेरेंस होता है। ठीक है, आप इसको वॉच कर सकते हो। यहाँ से पॉइंट बनाया, इसको आप राउंड करिए, राउंड करते हुए जब जाएंगे और वापस इसी पॉइंट पे आएंगे, तो जो भी पाथ इस सर्किल के बिहाफ में कवर किया जाएगा, तो वो पाथ इसका सरकमफेरेंस होगा। यानी एक रिवोल्यूशन में 2πr की डिस्टेंस कवर की जाएगी। और ये पूछ रहा है कितने रिवोल्यूशन करेगा, यानी नंबर ऑफ रिवोल्यूशन चाहिए आपको। इस क्वेश्चन में और क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में गिवन है कि इसकी 10 मिनट ये चलती है कार और ट्रेवलिंग स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर। अब आप ध्यान दीजिए, इसमें दो चीज़ें गिवन है। एक 10 मिनट टाइम गिवन है और स्पीड गिवन है। स्पीड गिवन है 66 किलोमीटर पर आवर। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखें हमेशा, डायमीटर थी आपकी सेंटीमीटर में सर्किल की, ये है मिनट में, ये है किलोमीटर और आवर में। तो सबसे पहला काम जो करना है, सबको एक यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए। यानी सबसे सही क्या तरीका है कि ये है किलोमीटर, तो इस किलोमीटर को आप अकॉर्डिंग टू सर्किल रेडियस सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट कर लीजिए। साथ ही साथ इस आवर को मिनट की जगह सेकेंड में कवर कर लीजिए और इसको भी सेकेंड बना लीजिए। क्यों ऐसा कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, सब एक जैसे दिखें इसलिए। टाइम 10 मिनट है, तो आपको पता है 1 मिनट इक्वल होते हैं 60 सेकेंड के, तो आप इसमें 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 600 सेकेंड। टाइम आपका आ गया सेकेंड में। इसी तरह से ये है 66 किलोमीटर पर आवर। तो आप याद रखें, जब कभी भी किलोमीटर पर आवर को आप पहले मीटर पर सेकेंड बनाना चाहते हैं
तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, और मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्चुअल ये 500/18 का मल्टीप्लाई करने से ये सेंटीमीटर पर सेकेंड बन जाता है। ठीक है, अब आपके पास ये प्रॉब्लम हुई कि हम ये क्या याद रखें, तो आप एक तो याद रख सकते हो कि 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं याद रख पाते हो तो देखो 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल होता है, राइट, और 1 आवर 3600 सेकेंड के इक्वल होता है। तो अब आपको किलोमीटर पर आवर की जगह मीटर पर सेकेंड पहले बनाना है। तो मीटर बनाने के लिए आप क्या करोगे, किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई, और आवर को सेकेंड बनाने के लिए आप इसकी जगह पर 3600 का डिवाइड करोगे। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे, देखो ये 2 0 कैंसिल हो रहा है, 2 से ये कट रहा है 5 जा, 2 से ये कट रहा है 18 जा, तो ये 5/18 ही तो आया। तो 5/18 ये बन जाएंगे मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपको हमने क्या बताया कि इसको अकॉर्डिंग टू डायमीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, इसके थ्रू ये 500 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप इसको इजी कर लीजिए, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18। ये ऊपर से न्यूमरेटर हो गए 55, 11 5 जा 55, 100/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये हमारी क्या आ गई, स्पीड आ गई। टाइम दिया है, स्पीड दिया है, तो आपको डिस्टेंस का फार्मूला पता होगा। डिस्टेंस होता है स्पीड, देखिए फार्मूला क्या होता है, जब कभी भी स्पीड डिस्टेंस टाइम से रिलेशन होगा तो स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फार्मूला हमेशा लगना ही लगना है। तो देखिए इससे अगर डिस्टेंस का फार्मूला बनाएं तो ये टाइम स्पीड के साथ इनटू हो रहा है, स्पीड इनटू टाइम, तो हम यही यहाँ पर स्पीड इनटू टाइम लिख लेंगे। अब स्पीड हमने अभी निकाली 5500/3 और इनटू टाइम अभी हमने निकाला 600, तो ये रिप्लेस कर देंगे। इससे रिप्लेस करने से ये कट गया 200 टाइम, और मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 111, और ये 202040 इतने सेंटीमीटर। देखो ये है डिस्टेंस, और सबको हमने डिस्टेंस को सेंटीमीटर के फॉर्म में बनाया है। तो ये इतने सेंटीमीटर की डिस्टेंस ये व्हील कवर करेगा। हमें टोटल डिस्टेंस पता चल गई, और एक रिवोल्यूशन की डिस्टेंस हमें 2πr पहले से बता दिया है कि होती है। तो 2πr का मतलब 2 पाई को आप लिख सकते हो 22/7, ज़रूरत नहीं है अभी इसको मल्टीप्लाई करने की। और r की वैल्यू आपको गिवन है, व्हील की रेडियस हमने साइड में लिख रखी है, ये रेडियस ही है, तो ये 40 वैल्यू इसकी हो गई। ठीक है, तो ये हो गया एक रिवोल्यूशन की डिस्टेंस, और ये है टोटल डिस्टेंस। तो हमें क्या निकालना है, इसमें निकालना है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का मतलब टोटल डिस्टेंस, ये है हमारी टोटल डिस्टेंस, और बाई 1 की डिस्टेंस। तो देखिए इसमें है 2 × 20 2 × 40, हमने कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं किया है, पहले हम सॉल्व करते ही नहीं है। ये जो अपान का 7 है, ये आप बच्चों ऊपर जाएगा तो क्रॉस हो जाएगा × 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। देखो 0 से 0 कट गया, आप 11 से कट कर सकते हैं 1 जा, और 4 0 दिख रहे हैं तो 4 0 लग जाएंगे। नीचे 11 से ये कट जाएगा 2 जा। अब नीचे देखो क्या गया, 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 का आप इसमें कम्प्लीटली डिवाइड कर दीजिए। तो 16 जब डिवाइड करेंगे 16 6 जा 96, बच्चे 4, 16 2 जा 32, बच्चे 8, 16 5 जा 80, और इंटू 7 ईजिली मल्टीप्लाई करके 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 3 17, और 7 6 जा 42, 143। इतने रिवोल्यूशन आ गए। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन यूनिट नहीं होती, केवल आप नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बता सकते हैं कि ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, अगर इस कैटेगरी का मल्टीपल चॉइस बनाया जाएगा तो आप समझ सकते हो थोड़ा सा काफ़ी स्टैंडर्ड हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। अब इसमें केवल टिक करना है, जस्टिफाई योर आंसर। 4 ऑप्शन इसमें भी गिवन है। कह रहा है इफ पेरीमीटर एंड
द एरिया ऑफ सर्किल आर न्यूमेरिकली इक्वल। क्या क्या इक्वल है? पेरीमीटर और एरिया। तो हमें दोनों का फार्मूला पता है। क्वेश्चन नंबर 5 हम साइड में कर रहे हैं। देखिए, पेरीमीटर का मतलब 2 पाई आर और एरिया का मतलब पाई आर स्क्वायर। ये आपका न्यूमेरिकली इक्वल है, तो ये इक्वल कर दीजिए। तो इससे देखिए पाई से पाई कट गया, एक आर से ये आर कैंसिल हो गया, तो इससे रेडियस आ गई 2 यूनिट। यहाँ यूनिट लिखेंगे, रीजन अभी पता ही नहीं। तो इसमें पूछा क्या है? देन द रेडियस ऑफ सर्किल, हो गया 2 यूनिट, अभी तो निकाला हमने आर। ओके, तो ये हमारी इस तरह से एक्सरसाइज कंप्लीट होती है बच्चों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और इसको कमेंट कर सकते हैं। अगर पूछना है नेक्स्ट वीडियो में कुछ चाहते हैं एक्स्ट्रा, तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।